यहाँ से लोग मेरी एज भी गेस करेंगे. But you still- Sushmita Sen was crowned as Miss Universe in that year when I was in 8th standard. Okay. And मम्मा को एक ड्रीम आता है कि मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूँ. Oh. And I was too young at that time. तो मुझे ये कहते हैं, शैली तू नहीं जा सकती थे. तो मैंने कहा मम्मा मिसेस पंजाब, पता नहीं वहाँ पे ड्रेसेस भी कैसी डालनी होंगी और मैं कर सकती हूँ. मैं फिर से भगवान जी से सॉरी कहूँगी कि प्लीज़ अब कोई नई प्रॉब्लम मत देना. ये सुनने के बाद. You're still so young. I mean, why didn't you choose to get married? This is a big question. And I'm very sure that there must be so many men who try to woo you. But the thing is, we are staying in a society जहाँ पे एक सिंगल मदर को, अब ये वर्ड मुझे यूज़ करते हुए भी बुरा लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है. Why am I getting married? What is the purpose of getting married then? I know people get married for themselves. Of course, उनको प्यार चाहिए, उनको एक पार्टनर चाहिए. What advice would you give to the single moms out there? I know being a mother is a huge responsibility, and a single mother is like multiplies everything. उस बुरे वक्त में अगर हम खड़े रह पाए ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो आई गेस नो रिलेशनशिप कैन फेल. अगर आज मैं स्माइल कर पाती हूँ ना, देन माई मदर इज़ द रीज़न. पीपल थे वो अच्छे थे क्योंकि वो प्यारे थे, फुल ऑफ लव थे. और मैंने हमेशा कहा है कि वो गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ रहा है, बिकॉज वो बहुत प्यारा था. तो बहुत ही स्वीट जेस्चर है. थैंक यू. सच्ची मुच्ची वाला, अभी वो नाटक वाला तो नहीं लग रहा था. इफ़ यू रियली लाइक्ड अवर कन्वर्सेशन एंड आपको कुछ भी अच्छा सा मिला है थ्रू आवर कन्वर्सेशन एंड यू वुड लाइक टू सी मोर सच वीडियोज, देन डू सब्सक्राइब @The Dimpled Way. Hi everyone, this is Priyanka Saraswat और आप सबका स्वागत है हमारे नए शो में जिसका नाम है द डिम्पल्ड वे फीट प्रियंका सारस्वत. और आज के एपिसोड में हमारे साथ आई हैं अ लेडी हु डज इट ऑल. I mean all. She is a software engineer by profession, an actor, model, and more than that, a super mother. So talking about her achievements, so she is a title winner at Mrs. Punjab Pride of Nation 2016, an actor, IT professional, national director at DMNGO, Iron Lady awardee, National 100 Superwoman awardee. Her article was published in Betia, the Book of Records. So give a huge round of applause and welcome to the very beautiful and talented Shweta Sarangal. Thank you for such a sweet introduction and for having me here at The Dimpled Way today. Thank you so much, ma'am. How are you today? I'm doing good. How are you? I'm all good, ma'am. So your name is Shweta Sarangal, but you write Shweta Gorish in your name. So what is the story behind it? Story is very sweet and simple, I would say. Gorish is actually my son's name. So majorly everybody knows about that. Those who don't know, they'll know it today. That मुझे बचपन से ये लगता था, सिंस माई चाइल्डहुड डेज व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, वी वर टोल्ड कि गर्ल्स को सरनेम नहीं लगाना है बिकॉज दे विल गेट चेंज एट द लेटर स्टेज वंस यू गेट मैरिड. एंड शादी के बाद ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली ठीक है, वो सरनेम तो जैसे ही मुझे मिला आई चेंज्ड इट टू श्वेता राज, बट ऑल राइट, थिंग्स डिडंट वर्क आउट. उसके बाद मुझे ये था कि अब मेरी पहचान क्या है, व्हाट्स माई आइडेंटिटी. सो अब मुझे ये लगता है कि मेरी आइडेंटिटी being a mother of Gorish is everything. वही मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, वही मेरी आइडेंटिटी है, उसी वजह से मैं हूँ, मुझे ऐसे लगता है. तो yes, Shweta is with Gorish all the time and Shweta feels complete with Gorish. That is why it's always Shweta Gorish. That's so sweet, ma'am. So, ma'am, you are so versatile, right? You are into tech and now working as a project manager, I think, right? And you're into modeling, acting, and doing all the things together, and a single mother especially. So what is the motivation behind it? How does this strength come from? Strength is, I would say, that would remain the same, Gorish. He's the one biggest strength I have in my life. He's the reason why I am alive, of course. And उसी वजह से लगता रहता है कि मुझे सब कुछ करना है और बहुत अच्छे से करना है, so that इसको कभी ये ना लगे कि मेरे उस डिसीजन से या जो भी लाइफ में हैपनिंग्स हुई उसे कोई कमी रह गई. सो आई एक्चुअली वांट टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर हिम. एंड ऑफ कोर्स दूसरी स्ट्रेंथ मुझे मेरी फैमिली से मिलती है,
those who have always been so supportive since day one. पहले तो थे ही थे and बाद में and till today उनकी support हमेशा होती है मेरे साथ, तो तभी मैं सब कुछ कर पाती हूँ. तीसरी and the foremost is that Almighty. वो strength देते हैं जब ये विश्वास रहता है कि हाँ मैं सच्चे मन से चल रही हूँ ना, तो हो जाएगा सब कुछ. तो बस करते चलो, उनका नाम लेते चलो और आगे बढ़ते चलो. So that's the thing. That's great, ma'am. So, ma'am, you got married in 2008. Then Gaurish came in your life in 2009. And in 2010, you got divorced as well. So it was so much that happened in 3 years only. How did you process it? It was a life-changing turning point that came in your life. Yeah, 2010, I would like to correct you over there. Okay. It was just separation that did happen. Sorry. The divorce took another 6 years. 6 years? Yes. Okay. Damn. So how did you process all this and how did you make peace with it? I know it was not at all easy, of course, neither for me nor for my family. But they were there all the time and they were supporting through all the things which were happening. एक चीज़ जो है जिसके लिए मैं रब का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली में जन्म दिया, कि मैं इस घर की बेटी हूँ जो कि इतने प्यार से सबको बांध के रखते हैं. मोमेंट्स आती हैं टफ एंड बहुत मुश्किल फेज़ था वो. वन थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट वॉज उन सबका प्यार, उन सबकी सपोर्ट एंड वो हम सबकी स्माइल टू मेक अदर पर्सन फील बेटर. जो दूसरा इंसान स्माइल करता है कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, विल गेट थ्रू इट टुगेदर, विल गेट थ्रू इट. सो दिस वाज इट एंड इट्स देयर टिल टुडे. So what is that one thing about Gaurish that makes it all worth it? कि whatever happened in your life, but that one thing को लगता है ठीक है, it is all worth it. You had your son. That one thing I want to know from you. That one thing, yes, you had spoken it already. That one thing is, of course, Gaurish is with me. We are at peace. We are staying in our onshore sweet home together. और मुझे ये लगता है घर वही है जिसमें आकर आपको शांति मिलती है, जहाँ पीस हो, जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें प्यार हो. अगर वो नहीं है ना, उस घर में अशांति है, आप उस घर में आ रहे हैं जहाँ पे आके आप डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं, डिसवैल्यूड फील करते हैं, तो वो घर नहीं है. जिस घर में प्यार नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है. सो आई वुड से ठीक है, जो भी हुआ इट वॉज ऑल वर्थ इट, बिकॉज नाउ वी आर टुगेदर एंड स्टेइंग इन अ होम जिसमें चाहे बहुत कम और बहुत थोड़े से लोग हैं हम. could be me, my son, my mother, my brother, of course, but प्यार है. So it's of course worth it. प्यार है, peace है. So I'm sure these are the, you know, the most precious things जो मिलती ही नहीं है ज़िंदगी में. तो वो है, तो मुझे लगता है सब कुछ है. That's amazing, ma'am. So we talked about motherhood. Now get to the modeling aspect of your life, right? You participated in the pageant in 2016. Right. What is the story behind it? 2016. Yeah. This was quite interesting. When I was in 8th standard, आपको शायद याद होगा, अभी यहाँ से लोग मेरी एज भी गेस करेंगे. Sushmita Sen was crowned as Miss Universe in that year when I was in 8th standard. Okay. And उस रात को हम लोग वो इकट्ठे वॉच कर रहे थे, me and my family all together. And मम्मा को एक ड्रीम आता है कि मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूँ. And I was too young at that time. मेरे mother, she has been a guiding source of my life, you know. She had always been there through all the ups and downs or whatever has happened in my life. She had always been there. उस टाइम पे भी उनके इतने प्यारे प्यारे से सपने सुन के, जैसे होता है ना, एक वो मिलता है किक. अच्छा,
ऐसा हो सकता है, मम्मा ने ऐसा सोचा है तो शायद ऐसा हो सकता है. एंड वो बचपन से ही कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते होते थे. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट सब कहते थे नहीं नहीं तू कर सकती है. Of course you कर सकते हो यार. अभी मम्मा भी को कर सकते हो. बहुत विश्वास था. सो इन 2016 जब इतना कुछ लाइफ में चल रहा था, एंड देन फाइनली दैट वन स्टेज केम जब हम फ्री हो गए फ्रॉम ऑल दैट नेगेटिविटी. उसके बाद ऐसा था कि बाय चांस मम्मा को ही स्क्रॉल करते करते ये दिखता है मिसेस पंजाब प्राइड ऑफ नेशन का एक एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक. कैन यू इमेजिन? मेरे मम्मा भी बहुत वर्सेटाइल है वैसे. I can see. उन्होंने वो देखा एंड सडनली वो मुझे ये कहते हैं, शैली तू नहीं जा सकती है थे. तो मैंने कहा मम्मा मिसेस पंजाब, पता नहीं वहाँ पे ड्रेसेस भी कैसी डालनी होंगी और मैं कर सकती हूँ. तो वो उनको मुझ पे मुझसे ज़्यादा विश्वास था. वो कहते क्यों नहीं कर सकती, ये देख यहाँ पे ये इतनी सारी गर्ल्स ने रजिस्टर कर रखा है, ये कैसे किए हैं, ये कैसे किए, तू तो बहुत अच्छा कर सकती है. सो मम्मा गेव मी दैट स्ट्रेंथ. नो शैली, गो अहेड and appear for it. I'm sure you'll do something. So, बस we decided, I registered for it, gone for the auditions and got selected. Then तो फिर finale आता है and सारी family वहाँ थी, इतनी ज़्यादा hooting and all that feeling that will remain here for the whole life. And उसके बाद जो positive changes आए मेरे life में through that platform, you know, and through my mentors, of course. They are connected with me till date and they keep on guiding me at every step. जब भी मैंने कोई project choose करना होता है, मुझे कोई confusion होती है तो मुझे होता है हाँ मैं अपने बाखा मैम को पूछूंगी, वो मुझे बहुत अच्छा बताएंगे कैसे करना है. And she always guide me the best. That's such a beautiful story, ma'am. So you got into acting after that. I think it happened after pageants only. You decided to get into acting. Right. So you always chose to do the cameo roles. But didn't go for continuity character or lead character. So why was that? Okay, that's interesting again. ऑप्शंस तो बहुत मिले थ्रू आउट कि लीड पे ये कर लो या कुछ कॉन्टिन्यूटी वाला अच्छा सॉलिड कैरेक्टर. बट समवेयर आई ऑलवेज न्यू इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज. Why? Because my job would get affected and that job, my IT job, I love that job a lot. लोगों को ये लगेगा कि अगर इसे उस जॉब से इतना प्यार है तो फिर ये क्यों कर रही है ना. कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हैपनिंग्स होती हैं लाइफ में एंड थ्रू दैट यू गेट टू नो अरे नहीं यही है मेरा एक्चुअल जहाँ पहुँच के जो काम करके मुझे खुशी मिलती है. एंड दिस एक्टिंग फील्ड इज yes good. It gives me happiness from inside and of course जब recognition मिलती है आपको अपने काम की तो अच्छा लगता है फैमिली को अच्छा लगता है, हाँ कुछ हटके कुछ अलग कर रही है, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है. बट मेरा जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. क्यों? क्योंकि उससे मेरा घर चलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है. एक स्टेबिलिटी तो ऑफ कोर्स है, उसी वजह से है एंड उसी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस ले पाती हूँ. आई गेट टू चूज मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. वाई? बिकॉज आई नो दैट वन सिक्योर एंड स्टेबल जॉब इज देयर थ्रू विच आई कैन रन माई थिंग्स इन अ वेरी नाइस वे. एंड अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं भी मिलता, वाई, अगर मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और मुझे ये नहीं करना है, आई कैन ऑप्ट फॉर इट, I can deny for it. And कुछ मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना कुछ बता सकती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कैसे कैरेक्टर्स करने का है. कॉन्फिडेंस भी रहता है बिकॉज डिपेंडेंसी नहीं है. यू कैन ऑलवेज चूज कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है. एंड कंटिन्यूटी या लीड कैरेक्टर करते हैं तो मुझे पता है एवरी डे वहाँ जाना पड़ेगा, लेट नाइट घर आना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम आ जाएगा, जाना पड़ेगा. वो आई नो इट विल बी डिफिकल्ट विद गौरिश ऑफ कोर्स. एंड मेरी जॉब पे भी आएगी और वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती. एंड ऑफ कोर्स पहले ही इतना लिमिटेड टाइम है तो उसमें से मुझे इतना ज़्यादा टाइम अपने पैशन को तो नहीं देना है. मुझे मेरे घर की शांति को देना है, ऑफ कोर्स मेरे बेटे को देना है, मेरी जॉब को भी देना है क्योंकि उससे मेरा घर चलता है. So ma'am, what kind of roles are you truly fascinated by? That the kind of specific character that you would love to play on screen? Imagination. I got some time back one project जिसमें स्टोरी लाइन कुछ ऐसी थी जो मेरी रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी.
I would love to play such roles, of Hmm. course. Hmm. And बहुत बार मुझे ऐसे मिले भी हैं, वो बहुत शॉर्ट Hmm. ड्यूरेशन के लिए रहे हैं. कभी Hmm. कुछ ऐसा अच्छा सॉलिड करने को मिले जिसके थ्रू मैं कुछ अच्छा मैसेज दे सकूं, है ना, पब्लिक को एंड मेरे लव्ड वंस को. तो आई वुड लव टू डू दैट. So, ma'am, sometimes bad things happen to us, and we know that we are good people, and still bad things happen in your life, and you ask God that why did it happen to you? You didn't deserve this. So, does it, like, did it ever happen in your life? Yes, why not? I'm sure everybody would agree with it. ये सबके साथ ही होता है कि लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है, एंड देन वी से क्यों हुआ ये, क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो इतने सच्चे मन से चल रही थी या चल रहा था, फिर भी ऐसा हो गया. बट ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, वो वैसे ही होनी होती हैं, बिकॉज उसके बाद ही हमें अपना ट्रू पोटेंशियल पता चलता है. मुझे ऐसे लगता है कि यस, जब भगवान का कुछ अलग ही प्लान होता है हमारे लिए, तब वो ऐसा करते हैं कि हमें इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालते हैं, तब हम घबराते हैं, डरते हैं और ये भी बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों कर रहे हो ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. बट ठीक है, समवेयर अब इतनी बार ऐसे होने के बाद अब ये पता है कि जब ऐसे होता है तो आई नो दैट गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम समथिंग रियली बैड, which is not maybe made for me, which is not good for me or my loved ones. इसलिए ऐसा नहीं हो रहा. एंड वो मुझे चाहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूं और कुछ ऐसा करूं, मे बी उनके थॉट्स किसी तक पहुंचा सकूं, या अपनी फैमिली को कंफर्ट दे सकूं, या अपने लिए कुछ ऐसा करूं कि ऑब्वियसली पता चले कि हाँ, अगर इसको धक्का दिया था तो ये खड़े तो हो गई है. वो खड़े होना बहुत डिफिकल्ट होता है, और जब आप खड़े हो जाते हो उसके बाद आप कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हो. फिर वैसे भी वो कहते हैं ना कि एक बार जब आप खड़े हो गए हो ना, बार बार गिरने के बाद जो इंसान बार बार खड़े होता है, उससे तो फिर अब कोई पंगा ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि उसे खड़े होना आ गया है, अब वो खड़ा हो सकता है. मैं फिर से भगवान जी से सॉरी कहूंगी कि प्लीज अब कोई नई प्रॉब्लम मत देना ये सुनने के बाद. भगवान जी ने आपको वो स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ. वो रियलाइजेशन आपके अंदर जरूर है दैट आई हैव द स्ट्रेंथ टू डील विद इट. इट विल टेक टाइम बट स्टिल यू विल गेट ओवर इट विद टाइम, राइट? सो मैम, यू डिडंट choose to get married again. Why? You're still so young. I mean, why didn't you choose to get married? This is a big question. I'm very sure that there must be so many men who would try to woo you. See, कौन है, मुझे नहीं लगता who would like to marry a girl, a boy. Everybody wishes to have a partner and right. अब ये नहीं हुआ और ये नहीं हो पाया, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं. ऐसा कभी भी नहीं था that I never wanted to get married or maybe remarry. I wanted to. Even my family wanted it to happen more than me. They tried even. But the thing is, we are staying in a society जहाँ पे एक सिंगल मदर को, अब ये वर्ड मुझे यूज़ करते हुए भी बुरा लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है. So this acceptance word जब वो आता है ना कि अच्छा हम आपको आपके बेटे के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, it is a kind of एहसान कर रहे हैं. So for a man it's not very difficult. Yes, it's not difficult at all. They can get married at any age with a kid or 2 kids. Maybe their kids are married, then also they can marry. I have seen such cases. Okay, but for a woman who is of course a mother, it is really, really difficult to get married. And now I feel it is fine. You didn't want Gaurish's life to get hampered as well. That's why you didn't choose. Of course. जिनको शादी करने से पहले सब कुछ बहुत अच्छे रहता है, उनको लगता है ओके सब कुछ बहुत अच्छा है, yes, everything is there. When it comes to Gaurish, besides of knowing the fact that Gaurish is everything
for me. And when you talk about okay शादी करते हैं but हम ऐसे कर लेंगे इसको हॉस्टल में भेज देंगे for first 2 years में भी, जब थोड़ी सेटलमेंट हो जाएगी तब ऐसे कर लेंगे, या कोई तो ऐसे श्योर नहीं होता है, मे बी मेरा गौरिश की तरफ शायद इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा. मुझे ऐसे लगता है कि जिनके मन में पहले से ही ऐसे डाउट्स एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दे माइट नॉट बी सो गुड टुवर्ड्स माय गौरिश, देन व्हाई एम आई गेटिंग मैरिड? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड देन? I know people get married for themselves. Of course, उनको प्यार चाहिए, उनको एक पार्टनर चाहिए, उनको एक घर चाहिए जिसमें प्यार हो. Of course, इसके लिए हम शादी कर रहे हैं. But मुझे एक पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए, एक साथ तो चाहिए ही चाहिए. पार्टनर से पहले वो दोस्त हो जो दोस्त की तरह मुझे और मेरे बेटे को भी समझे. मैं नहीं कहती कि आप उसके फादर बन जाओ, मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप उसके फादर बन जाओ, बट दे कैन एटलीस्ट ट्रीट हिम लाइक अ किड, अ नॉर्मल किड. जब ऐसे थॉट्स सुनती हूँ ना कि हम आपको आपके बेटे के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हम बहुत बड़ी गनीमत समझो. आज ऐश्वर्या राय को भी कोई डाइवोर्स देके चला जाएगा तो भी उससे कोई शादी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बहुत कंडीशंस लगाएगा. ऐसी बातें भी मैंने सुनी हैं, ऐसी मैंने बातें सुनी हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी फ्यू, देयर आर टू मेनी केसेस देयर. सो मुझे बार बार ये समझ में आता था, अच्छा गौरिश इज अ प्रॉब्लम फॉर देम. शादी करनी है तो वो इस टेक पे करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं गौरिश को लेके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. सॉरी, देन आई रियली डोंट विश टू मैरी. मुझे करनी ही नहीं है. सो ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई थी. बहुत टाइम लगा, बहुत धक्के खाए, उसके बाद ये क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद अ रॉन्ग पार्टनर. True. So Gaurish is 15-year-old, right? Yes. How mature is he to know you and understand your life? Oh, he is actually very mature. He is very sweet. He is very sweet. पहले तो वो कभी कुछ पूछता नहीं था. अभी भी उसे होता है कि मैं कुछ पूछूंगा, मे बी मम्मा विल गेट इमोशनल, तो वो ट्राई करता है कि वो ना ही पूछे, बिकॉज ही नेवर वांट्स मी टू क्राई और फील बैड. तो वो बहुत आराम से मुझसे बात करेगा. एंड पीपल से दैट ही इज Xerox ऑफ मी. The way I talk, he also talks that way. तो वो बहुत प्यार से ये सारी चीज़ें उसने मुझसे पूछी हैं, समझी हैं. There was a time of course in class जहाँ पे फादर्स नेम देना होता है. अभी 10th की वो जो एंट्रीज जानी होती हैं, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लगा, तो वहाँ पे उसने ऑफ कोर्स नाम देखा, तो he was not feeling too good about it. उसे अच्छा नहीं लग रहा था. His father's surname? Yeah. No. He has no surname. Oh, he is Gaurish and I am Shweta. Together we are Shweta Gaurish. So मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है जहाँ पे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. Then he talks about it and हम लोग वो healthy conversation कर लेते हैं. And there again my mama comes in and वो पूरा टेक ओवर कर लेते हैं और इतने अच्छे से उसे समझाते हैं सब कुछ कि वो सब कुछ समझता है, अंडरस्टैंड करता है. एंड ही वैल्यूज ईच एंड एवरीथिंग आई डू फॉर हिम, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय किड. तो चलो मैम, एक सेगमेंट करते हैं आपके साथ में, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग. मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगी यहाँ से, और आपको बताना है किसी इंसान में आपके लिए एक रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है. ओके, ठीक है. सो अ पर्सन हु लव्स डॉग्स. I know it should be green flag, but I personally I'm not so fond of dogs. मुझे डर लगता है. So it's a red flag. A person who is always late. Oh, tricky one. A man. Okay. Who has to date you in future? उसकी qualities बतानी है आपको. Red flag और green हाँ, flag. Red flag, ठीक है. Talks a lot about their ex. It's okay if they want to make you feel comfortable and if they want you to know about their past and उसमें truthfulness है and he is being genuine, सच्चे मन से बता रहा है तो ठीक है, can be considered. It's a green flag. ठीक है. Who has a strong sense of humor?
Green. Green flag, okay. Doesn't like texting and prefers calling. Green. I think you are also one of them, right? Okay. Yes. Who's really close to their family? Green. Green flag, okay. Need a lot of personal space. Need a? A lot of personal space. Okay, that's fine. That's fine. A lot of. A lot of. It is red actually. हाँ. अब पर्सनल स्पेस में वो अपने पार्टनर को रखेंगे कि नहीं? हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. इफ दैट इज द केस देन इट इज अ रेड फ्लैग. Okay. Plans everything with perfection. A perfectionist. देखो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होना भी ना कभी कभी बहुत Hmm. टेंशन वाली बात हो जाता है. भाई नॉर्मल सा चल. OCD जिसको OCD होगा. नहीं, red flag. No. ठीक है. Red. Prefer staying in rather than going out. Prefer staying in home. हाँ, Okay. home rather than going out. It's a green flag for Green me. flag, okay. Even I love staying at home rather than going outside. Okay, so he is big on spontaneous road trips. Okay, green. Green, ठीक है. Is super organized with everything. चलो ये तो हमारा हो गया वैसे. Good है, green ही है. इसमें तो फायदे ही हैं. हाँ, आपको थोड़ा काम कम पड़ेगा. करना पड़ेगा. So follows a strict diet and fitness routine. Oh, okay, green. अच्छी Green. बात है वैसे तो अपनी Hmm. फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए. So it's a green. हम भी लर्न कर लेंगे कुछ. Is not into reading or learning new things. Tricky one. Okay. It's not Is read. not into reading or learning new things. No, It's a red flag. it's a red flag. Okay. Who's lazy? Red flag Red again. flag, yeah. उसको तो जबरदस्ती बोल के करवानी पड़ेंगी चीजें कि do this for me. ठीक है. Loves to sing and dance or perform in public even if they are not good at it. हाँ, it's green. अगर वो अच्छा भी नहीं है उसमें. कोई बात नहीं. ये तो स्वीटनेस है उनकी कि ठीक है खुल के कर रहे हैं किसी के सामने. ठीक है नहीं है गुड सो व्हाट. दिल से कर रहे हैं ना. मे बी आपके लिए गा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रीन फ्लैग. ठीक है. Prefer small gatherings over big parties. ग्रीन. Okay. Enjoys discussing politics. रेड. Red. You don't like it much? Okay. No. Has a habit of cancelling plans last minute. रेड. Red. Okay. Buy gifts for no reason. ग्रीन. Great. Okay. So let's get back to talking about your experiences. ठीक है? What's the most important lesson you learned about yourself in your past years? सबसे important lesson अभी तक के experiences में से, which keeps you going. इम्पॉर्टेंट लेसन. अपने ऊपर काम करो. ये मैंने खुद मेरे मेंटोर्स से सुना, सीखा, देखा, ऑब्जर्व किया कि प्रायोरिटी खुद को बनाओ, अपने ऊपर काम करो. जब तक हमारे अंदर पीस नहीं है ना, हम अंदर से बेटर फील नहीं कर रहे तो हम बाकियों को क्या ही बेटर फील कराएंगे. मुझे मेरे घर पे पीस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को पीस में रखना है तो पहले मुझे खुद को सेट करना पड़ेगा. सो खुद पे काम करना है सबसे पहले. एंड फॉर दैट यू कैन ईदर डू मेडिटेशन, योगा और समथिंग लाइक दैट. विल फील गुड. एंड ऑफ कोर्स अपने स्किल सेट पे काम करना है. इन विच एवर जॉब यू आर, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. उनसे नया नया सीखो. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्टडी गुड. पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. ये सबसे बड़ी लर्निंग है मेरी लाइफ की. एंड आई थैंक डिटी फॉर द सेम एंड ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स कि मुझे उन्होंने पढ़ा दिया. अदरवाइज लाइफ कुड हैव बीन रियली रियली डिफिकल्ट. सो पढ़ो, खुद को सेटल करो, खुद पे काम करो, खुद को पीस में लाओ. देन यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल अदर थिंग्स वेल. True, ma'am. Agreed. So, if you could write a letter to your future self, आप क्या लिखोगे? मैं क्या लिखूंगी अपने फ्यूचर सेल्फ को? मैं यही लिखूंगी, बी द वे यू आर, बी ऑथेंटिक, हंसते रहो, खुश रहो, अपनों से जुड़े रहो. बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट. लाइफ इज टू शॉर्ट. इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल. सो जो भी टाइम मिलता है ना, उसे अपनों के साथ जी लो. खुश रहो बस. Okay. What advice would you give to the single moms out there?
I know being a mother is a huge responsibility, and a single mother is like multiplies everything. So you feel burnout, so exhausted. So आप क्या बोलना चाहोगे, एक advice? एडवाइस यही है कि इस चीज़ को ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लेना है. ओके, इट वाज रिटन इन आवर डेस्टिनी. ठीक है सिंगल मदर, इट्स अ पावर इन इटसेल्फ. भाई हम खुद से कर रहे हैं सब कुछ, ये इजी नहीं है. आप तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो. सो ऑल सिंगल मदर्स आउट देयर, यू आर पावरफुल ऑलरेडी, क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली इतना कुछ कर रहे हो. तो डोंट फील सैड और बैड अबाउट इट एट ऑल, और खुद के लिए बिल्कुल भी तरस मत खाओ. इट्स ऑल गुड एंड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन. रब जी ने आपको ये मौका दिया है टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर वर्थ इट एंड यू कैन डू वॉट एवर यू विश टू. That's beautiful, ma'am. So, according to you, what are those 3 qualities that makes a relationship stronger? ट्रस्ट तो बहुत ही मेन है. लव ऑफ कोर्स इज द बेस ऑफ एनीथिंग, बट एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड थर्ड वन, व्हाट वुड आई से, टू बी देयर फॉर ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स एट लीस्ट. क्योंकि बहुत कुछ होता रहता है लाइफ में. यही होता है जनरली, रिलेशनशिप्स कहाँ पे फेल होते हैं मुझे ऐसे लगता है, जब कुछ बुरा वक्त आता है एंड हम उसे टैकल नहीं कर पाते. हम समझ नहीं पाते कि प्यार तो है, विश्वास भी है, प्यार भी है, ये वक्त बुरा है. उस बुरे वक्त में अगर हम खड़े रह पाए ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो आई गेस नो रिलेशनशिप कैन फेल. Okay. So describe your day, ideal day from morning to evening. कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है that makes your day like fulfilling day, कि अरे आज मैंने अच्छा कर लिया. Oh my God, interesting one. बट अभी ये सुन के सबको बहुत शौक लगने वाला है कि मेरा आइडियल डे ऐसा सा है. बिकॉज सबको लगता है मेरी बहुत डायनामिक सी लाइफ है, मैं ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, और शायद ये सब करके मुझे बड़ा मज़ा आता है. बट इफ़ आई टेल यू द ट्रुथ इज माई आइडियल डे इज़ टू वेक अप अर्ली, maybe around 5:30, 5:45. Okay, oh my God. And I'm following it from wow. quite a long time now. और इतने बजे उठ गई. उसके बाद ऑफ कोर्स हल्का सा भगवान जी का नाम लो, थोड़ा सा डे स्टार्ट करो विद मेडिटेशन. अपनी बालकनी में बैठ जाओ, कुछ वक्त शांति में बिताओ, पक्षियों को देखो, ग्रीनरी को देखो एंड फीलिंग लो. वो जो टाइम होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर मेरी मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट हो जाए ना, उस दिन मुझे लगता है हाँ अभी डे स्टार्ट अच्छा हो गया है, मैंने सब अच्छा कर लिया है. एंड उसके बाद मैं अपने योगा पे आती हूँ एंड योगा इज अ मैजिक. आई वुड think that is the secret of your youthfulness and prettiness. Prettiness is a word or not? थैंक यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट पहले मैं ऐसा सब नहीं करती थी. बट जब से मैं स्विच हुई हूँ इस चीज़ में, मुझे लगता है उसने तो अलग ही पावर दे दी है. वो जो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द डे में आप खुद पे अपना वक्त लगा लेते हो ना, योगा कर लेते हो, मेडिटेशन कर लेते हो, यू स्पेंड सम टाइम इन नेचर. एंड मेरी एक आदत है और मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में ऑल द टाइम म्यूज़िक चलता रहेगा. एंड म्यूज़िक, अब ये भी कुछ लोग हैरान हो सकते हैं कि वो ऑल द टाइम प्रेयर्स एंड एवरीथिंग, मेरे कृष्णा के भजन, आई लव लिसनिंग देम ऑल द टाइम. मैं ड्राइव भी करती हूँ तो मेरा वही चलेगा. समटाइम्स गौरिश गेट्स टॉर्चर्ड. अभी तो उसे भी सब याद हो गया है. फिर वो कहेगा मम्मा 1 घंटा हो गया, अभी बंद कर दें, कुछ और लगाए. अब उसकी ऐसी हालत हो जाती है. बट मुझे बहुत एनर्जी मिलती है उनसे. जब वो चल रहा होता है ना, वो म्यूजिक एंड वो प्रेयर्स, तो मुझे ऐसे लगता है हाँ अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ. साथ साथ मुझसे कुछ भी करवा लो. अब घर समेट लो, सब सेट कर लो, एवरीथिंग इज सेट फॉर द डे. उसके बाद अपना आराम से ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश होके. ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना घर पे बात करो. बिकॉज उसके बाद टाइम नहीं लगेगा जब ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा. तो मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है जब
मे बी अराउंड 10:30 11. उसके बाद अच्छा है, फिर ऑफिस का नॉर्मल रूटीन चलता रहेगा टिल इवनिंग. बीच में थोड़ी बहुत ब्रेक आएगी, लंच टाइम में गौरिश आएगा स्कूल से वापस. आपके पास अगर वो ऑप्शन हो जॉब ना करने का, आप चूज करोगे? बिल्कुल भी नहीं. नहीं, यू लव इट. हाँ, आई जेन्युइनली लव इट. मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं सैल्यूट करती हूँ उन लेडीज को जो हाउस वाइफ्स हैं. इट्स नॉट ईजी टू बी एट होम ऑल द टाइम डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो हम हर टाइम करते रहते हैं, एंड उसी एनवायरनमेंट में रहना पूरे टाइम. ट्रू. ये इजी नहीं होता है, बिकॉज हर एक को चेंज चाहिए होता है. और जब आप काम पे जाते हो थोड़ा चेंज मिलता है आपको, आप एनर्जाइज फील करते हो. समटाइम्स आप घर पे थोड़ा सैड है एनवायरनमेंट, आप बाहर जाओगे, मे बी समबडी विल स्माइल विद यू, यू लाफ विद देम, कुछ अच्छे पल मिलेंगे आपको, थोड़ा चेंज हो जाता है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड, जॉब नहीं भी करनी है बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो अपने लिए जो आपको खुशी दे. तो मेरी आइडियल डेज यही हैं, अपना नॉर्मल सा ऑफिस का काम किया, फिर इवनिंग में फ्री हो गए, फैमिली के साथ स्नैक्स टाइम किया, देन डिनर किया, देन वॉक पे चले गए. वो लेट नाइट वॉक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसके बाद वापस आके नींद बहुत अच्छी आती है. सो ये मज़ेदार सा एक मेरा नॉर्मल सा डे होता है. अब मुझे पता है इसके बीच में कहीं भी एक्टिंग या कुछ भी कुछ ऐसा नहीं आया, वो मेरे उसमें आइडियल डे में नहीं आता है. So what's something that you once thought that is your flaw, but with time you realize that it's a strength? Oh, okay. अभी हमने बहुत बार बात की. ये लगता था कि फ्लॉ है that I am a single mother. But अब मुझे लगता है कि no, that's fine. It's my biggest strength. It has given me a lot. The freedom that you have to choose for yourself. Yes, of course. कभी कभी सोचती हूँ, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी यही कहती है कि ये शायद कभी नहीं तू कर पाती जो तू अभी कर रही है, कर पा रही है, इतना कुछ करती रहती है. पैशंस फॉलो कर रहे हो, हॉबीज फॉलो कर रहे हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स यू आर योर ओन बॉस ऑन दैट. यस. एंड अदर देन दैट, अगर एक बहुत ही वैसी वाली चीज है, मैं अपनी हाइट को लेके बड़ी कॉन्शियस होती थी. अच्छा, एक्चुअली ओके, ओह माय गॉड. इन आवर टाइम्स जब मैं स्कूल में थी, ओहो, मुझे लगता था मैं ही क्लास में सबसे लंबी हूँ, क्यों है मेरी इतनी हाइट. और मैं ना ऐसे ऐसे करके थोड़ी छोटी छोटी होती रहती थी कि थोड़ी सी हाइट मेरी छोटी लगे, मैं ही सबसे लंबी, और लाइन में सबसे पीछे खड़े होना पड़ता था. और आपको प्ले उस पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में लड़का तो नहीं बनाते थे? नहीं, मुझे भी बनाते थे, मुझे तो बनाते थे. बना देते थे क्योंकि हाइट लंबी है, लंबी थी. बट ये विद टाइम पता चला, अरे हाइट अच्छी होनी तो बहुत अच्छी बात है. अभी तो हाइट की वजह से इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं. ओके, सो हु इज दैट समवन दैट यू एडमायर द मोस्ट एंड व्हाई इन योर लाइफ, जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हो फॉर देयर क्वालिटीज? माय मदर. वो तो मुझे ऐसे लगता है कि वो रब जी भी सोचते होंगे ये मैंने क्या बना दिया, ये कैसा इंसान मैंने बना दिया. ओ माय गॉड, शी इज सो पावरफुल, शी इज सो लवेबल, शी इज सो केयरिंग. क्या कुछ नहीं देखा उन्होंने लाइफ में. अगर आज मैं स्माइल कर पाती हूँ ना, देन माय मदर इज द रीज़न. क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया है कि बहुत मुश्किल टाइम आते रहेगा, बहुत बार अकेले भी चलना पड़ेगा, फिर भी कैसे चलना है एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ये उन्होंने हमें सिखाया है. फिर भी कैसे हंसना है, ये उन्होंने हमें सिखाया है. तो अगर मैं कुछ भी अच्छा कर पाती हूँ तो उसका रीज़न वही है, क्योंकि वो ऐसे हैं इसलिए हम ऐसे हैं. शी इज़ द वन आई एडमायर द मोस्ट. कभी कभी ये कहती हूँ कि आपकी मैं 20% भी बन जाऊँ तो मतलब गनीमत है. सो मैम, इफ यू कुड रिलिव any moment from your past, if I could relive any moment, कोई ऐसा moment जो आप फिर से live करना चाहोगे, तो वो moment क्या होगा? I hope so it does not get emotional for you because I can sense what would your answer be. Of course, the moments where I felt loved, wanted, those moments. Okay. I know they are not there and they might not be there ever. But हाँ, वो जो भी पल थे वो अच्छे थे, क्योंकि वो प्यारे थे, full of love थे.
और मैंने हमेशा कहा है कि वो गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ रहा है, बिकॉज वो बहुत प्यारा था. आई एम सो सॉरी. No, ma'am, it's okay. Please, you can have water, ma'am. I can't even give you a hug यहाँ से. No, it's okay. I'm absolutely fine. Okay. Need some time, ma'am, please. And उस वक्त में सब कुछ अच्छा भी था. मेरे पापा भी थे, वो भी चाहिए मुझे. सो अगर मुझे लालच करना है तो वो सब कुछ चाहिए. Okay, ma'am. थोड़ा shift करते हैं. Please take your time. Are you fine? I'm Fine. sorry. Please. No, it's okay, ma'am. Please. So, एक rapid fire round करते हैं. Okay. Let's shift your energy from there. If Gorish describes you in 3 words, what would he say? Oh my God. Let's see how much you know him. Oh my God. Gorish would say, वो हमेशा यही कहता है. जब भी हमें बहुत आदत है, हम रैंडम कभी भी एक दूसरे को हक देते रहते हैं. बड़ा मजा आता है मुझे, उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है. तो वो जब भी हम हक देते हैं, ही ऑलवेज से, यू आर द बेस्ट मम्मा, यू आर द बेस्ट. फिर बोलेगा, मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा. ये दो तो पक्का ही है उसके. फिर आजकल उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्कूल में उसके फ्रेंड्स भी अब जानने लगे हैं कि इसके मम्मा तो कुछ ऐसा करते हैं. तो अभी जब कभी मैं उसके स्कूल जाती हूँ तो दे ट्रीट मी लाइक दैट कि ओहो इसकी मम्मा ना सेलिब्रिटी है. इनसे वो ले लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं बच्चे मेरे पास आके. like one. Even if आप इंडस्ट्री में नहीं होते, then also you have that persona of a celebrity. True. I'm telling you that. Thank you. That's so sweet of you to say. और अब उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है. अब वो कहता है, मम्मा स्कूल में भी ना सब ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है. चलो, that's a good thing. One superpower that you wish you had as a mom. Superpower? Oh my God. As a mom, what would I like to have? अभी जो मुझे लगता था जिनमें मैं लैक करती हूँ, मैंने उन पे काम किया है. I always wanted to set few good examples in front of Gorish, and now I think I am being able to. वो to wake up early in the morning, ये मैं नहीं कर पाती थी पहले, ये मैं अब कर पाती हूँ. कुछ ऐसी और चीजें हैं. कितने टाइम से चेंज आया ये मैम? Because I can't do it. ये ज्यादा देर नहीं हुई है. It's a punishment for me to wake up early in the morning. It was a punishment for me even. मैंने कभी नहीं किया था खुद पे इतना काम. अब कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है उससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मुझे खुद में फील होते हैं. तो वैसे और मैं कौन सी सुपर पावर लेना चाहूँगी? अरे एक तो वही जो बचपन से बोलती हूँ, बटन दबाऊं और जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए. गौरिश को कोई कमी ना हो, वो मुझे जो भी कहे मैं बटन दबाऊं और वो हो जाए. ऐसी सुपर पावर मिल जाए तो और क्या चाहिए. Of course, ma'am. So, best advice you have ever received from anyone? एक तो जो मेरे मामा ने हमेशा मुझे ये एडवाइस किया ही है, बी ट्रू, बी ऑथेंटिक. कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ गलत भी हो गया ना आपसे अगर, तो अपने पेरेंट्स को आके ज़रूर बताओ. ये मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, बिकॉज ये वो जो ब्रेक कर देता है वो वाली वॉल कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत भी कर दिया ना, देन ऑल्सो आई कैन गो टू माई पेरेंट्स rather than taking any other wrong step. That could be talk harmful. to your parents, talk to them, maybe they'll be able to help you out, and maybe they'll be able to get you out of that difficult situation. So kabhi bhi koi bhi mushkil aati hai life mein, talk to your parents. ये बेस्ट एडवाइस था मम्मा का, और मैं आज तक ये फॉलो करती हूँ. और सेम एडवाइस मैं गौरिश को भी देती हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरी नीस को भी, कि कुछ भी अगर बच्चे लाइफ में बहुत कुछ होता रहेगा. अब उनकी एज भी ऐसी है ना, टीन एज में आ गए हैं वो. कुछ भी होता है लाइफ में, आपसे ही कुछ गलत हो गया है और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है पीपल विल जज यू, देन ऑलवेज नो दैट योर मम्मा इज देयर. शी विल नॉट जज यू. आप आओ, शेयर करो,
हम निकालेंगे उसका सॉल्यूशन। उसको हाइड मत करो, ये ना हो कि बाद में कहीं बाहर से पता चले और वो भवंडर मच चुका हो तब तक, एंड शायद तब हम फिर टैकल भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पेरेंट्स आर द वंस जो आपका बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमेशा आपको अच्छा गाइड करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई गॉट थ्रू माई मॉम एंड आई एम फॉलोइंग द सेम। Okay, that's very nice, ma'am. One thing that always makes you laugh. नहीं, I would say the environment or the Hmm. moments I spent with my family. Hmm. Generally वही होती हैं जब मैं दिल से हंस रही होती हूँ, खुश होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ ऐसे पल रब ने दिए हैं जो हम अपनों के साथ बिता रहे हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं। हम लोगों को बहुत होता है जब हम इकट्ठे बैठे हैं सब, maybe we do not capture all such moments, but we do have them. वो बहुत प्यारे मोमेंट्स होते हैं कि हम खेल रहे हैं कुछ भी, इतनी बेकार बेकार गेम्स खेलेंगे हम, बट द लाफ वी शेयर, द स्माइल्स वी शेयर ड्यूरिंग दोज टाइम्स, वो तो मतलब बहुत ही प्यारी होती है, बहुत प्रीशियस होती हैं। So what is your favorite go-to comfort food? पराठास। Parathas. Okay. Which parantha? I like all sort of parathas. पंजाबी हो ना इसलिए। I think. Starting from aloo paratha, gobi paratha, gajar paratha, palak paratha, maybe any sort of. अभी तो आजकल बीट रूट के पराठास भी चल रहे हैं, वो भी। Okay, ma'am. I think these are all health conscious stuff that you're talking about. ठीक है? A dream travel destination. आप कहाँ जाना चाहेंगी? A dream travel destination. अगर ऐसा ही है, सिर्फ बोलना ही है, तो वो अपना बचपन वाला DDLJ वाला सपना पूरा कर लेंगे। Okay. A trip to Europe. Wow, nice. The celebrity you think who could suit your role in a movie? कि आपके लाइफ पे कोई मूवी बन रही है, आपको क्या लगता है कोई आसपास में कोई एक्ट्रेस है जो आपका रोल प्ले कर सकती है? बहुत आराम से। कौन फिट करेगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सोना? सुष्मिता सेन, श्वेता तिवारी, then who else? हाँ, these two names came into my mind. Okay. First thing that you notice about someone. Okay. किसी से मिलते हो तो पहली चीज क्या नोटिस करते हो उसमें? मतलब सबकॉन्शियसली वो जो नोटिस हो जाती है, the way they treat you, maybe the way they say hi to you, that eye contact, through that you get to know a lot. ना, थोड़ा पता चल जाता है आपको इंसान का। आई कांटेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, because vibes never lie. हाँ, वो वहीं से ही पता चलता है सब कुछ, तो वहाँ से ही समझ आ जाती है वैसे तो। पहले आईज मतलब नोटिस करते हो। ओके। One word to describe your life right now. Life is never easy, you know, it's difficult, but with one word जो आपको describe, आपकी लाइफ डिस्क्राइब करेगा, अगर आपको बताना हो that one word. love. Okay, full of love. What is that one thing you never leave while leaving the house? I never leave it. Okay, I think what was that one thing you never leave home without? Okay. I never leave home without, of course, phone. Phone. ये तो I think इसके बिना तो कहीं जा ही नहीं सकते ना। Okay. Your go-to stress reliever. जो स्ट्रेस होता है तो आप ऐसे क्या करते हो जिससे आपको स्ट्रेस रिलीज हो? किससे बात करना, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पहले तो वैसे मैं खुद को शांत करने की कोशिश करती हूँ, वही शांति में बैठना अपने फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर, एंड एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ सो डियर टू मी, बहुत मेरे सर्कल में ऑलमोस्ट सबको पता है हु इज़ शी। मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं तो वो कहेगी यहाँ पे भी बोल दिया तू, सबके सामने मुझे फेमस करती रहती है। सो मुझे पता होता है कोई भी पंगा हो गया, मैं ऑफ कोर्स मम्मा को थोड़ी टेंशन कम देना चाहती हूँ, एंड सिस्टर इज़ ऑल्सो बिजी इन हर ओन लाइफ, ऑल्दो शी इज़ ऑलवेज देयर। तो वो जो
फर्स्ट वो होता है ना, पता होता है कि अच्छा वो पंगा पड़ गया, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, किसके आगे रोना है, कौन मुझे सुनेगा, तो मुझे पता है शी इज देयर, दैट डियर Okay. फ्रेंड ऑफ माइन. मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ ना मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो पहली लाइन मुझे पता क्या आती है, तेरे को तो स्ट्रेस होते रहते हैं, अब कौन सा स्ट्रेस हो गया. तो डज इट हैपन विद यू आल्सो? नहीं, वो हमें पता है, उसे भी रहता है ना, तो हम दोनों एक दूसरे का वो नलिफाई करते रहते हैं. कभी मुझे रहता है तो मैं उसे संभालती हूँ, उसे रहता है तो वो मुझे संभालती है. द बेस्ट थिंग इज दैट वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. ओके, ठीक है. सो वन एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ. ओह, हाँ, थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ा और अच्छा पढ़ लो. ऐसा क्यों मैम, यू आर डूइंग सो गुड. कुछ अच्छी एडवाइस. कुछ अच्छी एडवाइस. यंगर सेल्फ में अभी सारे केसेस कंसिडर कर रही हूँ ना, हाँ. इसलिए मैंने ये बोला. बट अदरवाइज यंगर सेल्फ को मैं यही डोंट कहूँगी, बी बिलिटल कॉन्फिडेंट. योरसेल्फ. हाँ, हम बी मतलब कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल. हमेशा ये लगता था मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो हाय, ठीक लोगों नहीं को है. विश्वास नहीं होगा आपको देख के. नहीं, सीरियसली, बट मेरी फैमिली को पता है. मैं आई वॉज वेरी वेरी स्लिम, एंड वो जो टाइम था उसमें तो बिल्कुल जीरो फिगर वाला जमाना नहीं था. तो मैं बहुत कॉन्शियस रहती थी खुद को लेके. वो वाले टाइम को अब मैं याद करती हूँ तो सोचती हूँ अब मैं वैसी होती तो कितना अच्छा होता. बट नो, आई एम हैप्पी नाउ, जैसी भी हूँ आई एम ओके. You look really pretty. Or a quality that you admire in people. Making the other person feel comfortable. One advice to the young women, Oh my God. younger women than you. हाँ, pursue your dreams. यही टाइम है, जियो, करो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने लिए करो, अपनों के लिए करो. बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा. यही टाइम है कुछ करके दिखाने वाला. तो कर लो, जी लो. Okay, ma'am. So that's the end of the what we had. So it was so wonderful having you, ma'am. I really got to learn so many things. I think that's something I always get. But it was like I also felt like crying with you. I got emotional with you. So I wish you all the very best, ma'am. Stay happy and healthy, and all the very best for your future. Thank you so much. You're such a sweet host, I would say. Thank you so much, ma'am. Thank you. And we have a small gift for you. Please Oh, receive it from our that's end. really sweet of you all. This is for you. Oh, Thank you so thank much. you. Thank you so much for this sweet gift, the sweet gesture, and for having me here, of course. Thank you, ma'am. Thank you so much. So to everyone, if you really enjoyed watching our show, so don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and subscribe zarur kariyega. Thank you so much. Take care.